One thing I have learned over this year is that filmmaking is a balanced combination of everything. Shooting, scripting, lighting, editing. जैसे खाने में नमक होता है, ना ज़्यादा ना कम. And that's exactly what I try to do in my all 3 videos. And that's why I made this one before uploading my #4 क्योंकि पूरा comment box बस एक question से भरा हुआ था. How I create this video and how you can create something like this. Filmmaking usually 3 स्टेज में डिवाइड होता है. Pre-production, production and post-production. And within each of these stages, there is a very long list of things that needs attention before you can actually create something cinematic. And talking about everything in just a single video is simply not possible. और अगर कोई ऐसा कह रहा है कि one video is enough to understand everything, that's just clickbait. इससे सिर्फ मेरे views बढ़ेंगे, आपके knowledge नहीं. So covering one topic in one video is fair enough for me to explain and you to understand. So instead of talking about everything, I will focus one of the most common requests I get, the film look. The kind of look जैसे आप वीडियो में किसी भी मोमेंट पे पॉज करो and the frame instantly feels like it belongs in a film. Since this video is about process behind the look, so I think this is the best place to talk about my 2 sponsors of this video. The first one is Small League and the second one is Dehancer. Both are my favorite and luckily I also get opportunity to work with them as a sponsor. There's a one thing I want to clear up. एक काफ़ी common myth है filmmaking में, which is you can fix anything in editing, color, framing, lighting, almost anything, and this is exactly where most of the people fail. In reality, more than 70% जो cinematic look है, it comes from how you shoot, and editing जो होता है वो सिर्फ captured footage को enhance कर सकता है, ना कि उसे replace कर सकता है. So if you believe everything can fixed in editing, so you will always struggle a lot to achieve that look. Highlights and shadows are the first thing you need to understand if you want to achieve that film look, क्योंकि contrast ही है जो depth and dimension दोनों को frame में लेके आता है, और इसीलिए आपको इन दोनों के रिलेशन और बैलेंस को समझना बहुत ज़रूरी है. बिना शेडो के हर चीज़ फ्लैट दिखता है, और किसी सब्जेक्ट पे अगर सिर्फ लाइट ही लाइट हो और कोई शेडो ही ना हो तो वो अपना टेक्सचर और शेप दोनों को लूज़ कर देगा. तो शेडो एक्चुअली फॉर्म को बिल्ड करता है, और हाईलाइट जो होते हैं वो व्यूअर का अटेंशन को ग्रैब करता है. सो बैलेंसिंग दिस 2 एलिमेंट्स आर वेरी क्रूशियल बिकॉज इट कैन टर्न्स अ सिंपल शॉट इनटू समथिंग वर्थ वॉचिंग. बिना किसी लाइट के ना हाईलाइट नोटिस होगा और ना ही शेडो, एंड सनलाइट इज़ प्रोबेबली द बेस्ट लाइट सोर्स अवेलेबल फॉर एवरीवन. It's free, it's powerful, and it's one of the easiest way to bring strong highlights and shadows into a frame. You just need to understand how to use it. Normally golden hour को consider किया जाता है क्योंकि उस टाइम sunlight ना ज़्यादा harsh होता है और ना ही ज़्यादा dim. You get soft, beautiful rays that naturally create cinematic feel. But real question ये है कि sunlight को बाकी टाइम में कैसे यूज़ करें जब वो सबसे ज़्यादा harsh होता है. See, एक चीज़ मैं कहूँगा, nothing is more important in a frame than light. If you want to achieve any kind of cinematic look, you first need to learn how to control lights, and for that I highly recommend this 5-in-1 reflector. किसी भी ब्रांड का आप खरीद सकते हो. सनलाइट फ्री है पर उसके इंटेंसिटी को कंट्रोल करना नहीं, और ये टूल वहीं पे काम आएगा. मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ ये ट्रांसलूसेंट डिफ्यूज़र टू सॉफ्टन द लाइट. यू कैन ऑल्सो यूज़ रिफ्लेक्टर टू बाउंस लाइट बैक टू द सब्जेक्ट फॉर मोर फोकस, एंड द ब्लैक पार्ट टू ब्लॉक अनवांटेड लाइट्स. सनलाइट में शूट करने के लिए इन्हीं का यूज़ होता है, और इनके बिना आउटडोर में फिल्म कभी शूट होता ही नहीं है, तो इनका यूज़ करना ज़रूर सीखें. इट्स द मोस्ट यूज़फुल टूल यू कैन हैव. बट ऑफ कोर्स सनलाइट हमेशा और हर समय अवेलेबल नहीं होता, एंड दैट्स वेयर अनदर पार्ट ऑफ लाइटिंग कम्स इन. व्हेन यू आर शूटिंग indoors, lighting is something that you can completely control, and that's where cinematic image really start to take shape. The first and the main source of light is key light, and यही है जो highlights and shadows को define करता है. Basically, it decides the mood of the shot. Right now, I am using RC60B bi-color LED from a Small League. ये enough powerful है indoor shoot करने के लिए. You can control both the Kelvin and the intensity of the light, which gives you a lot of flexibility. Best part है कि it's rechargeable, so you don't always need a constant electricity supply to use it. It also comes with multiple modes, और अगर इसे 100% इंटेंसिटी पर यूज़ करोगे तो अराउंड 45 मिनट की बैटरी बैकअप मिल जाएगा.
Overall, it's a solid device. But quality of light is just as important as brightness. अगर आप इसे डायरेक्ट यूज़ करोगे तो काफ़ी हार्श लाइट आएगा, और हार्श लाइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग शैडो क्रिएट करता है जो कि काफ़ी अननेचुरल सा फील होगा. सो अगेन यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ डिफ्यूज़र का. एंड आई ऑल्सो यूज़ दिस मिनी सॉफ्ट बॉक्स, ऑब्वियसली फ्रॉम स्मॉल लिग. और आपने काफ़ी जगह सुना होगा कि 45 डिग्री पे लाइट को रख दो तो सिनेमैटिक शॉट अपने आप आ जाता है. ये बात सही है, लेकिन लोग ये नहीं बताते कि इसके पीछे का रीज़न क्या है. अगर आप लाइट को 45 डिग्री पे रखोगे तो सब्जेक्ट का एक पार्ट हाईलाइट हो जाता है और शैडो को अपना एक नेचुरल डायरेक्शन मिलता है, जिससे फ्रेम में डेप्थ और सिनेमैटिक फील का एक इल्यूजन बनता है. आप इसे 60-40 या 55-45 रख सकते हो. लेकिन यहाँ पे जो सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि डायरेक्ट लाइट को सब्जेक्ट पे दे देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज कर देता है. इसीलिए मैं सॉफ्ट बॉक्स और डिफ्यूज़र का यूज़ करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ लाइट को सॉफ्टन नहीं करता, ये हाइलाइट्स एंड शैडो का जो ट्रांजिशन है उसे भी स्मूथ करता है. और जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैंने बोला था कि फिल्म मेकिंग इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग, तो हाइलाइट्स एंड शैडो के रिलेशन को समझना ज़रूरी है, और इसीलिए एक्सपोजर एंड लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल करना भी उतना ही ज़रूरी है. तो फ्रेम में लाइटिंग बैलेंस्ड होता है तो व्यूअर शायद कॉन्शियसली हर डिटेल को नोटिस ना करें, बट वो फील कर लेता है कि दिस इज़ गुड एंड दिस इज़ नॉट. सो दिस इज़ हाउ यू कैन गिव शेप टू द मेन सब्जेक्ट. बट हमें ओवरऑल इन्वायरमेंट पे भी ध्यान देना है, और यहीं पे सेकेंडरी लाइट आता है. बेसिकली ये सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से अलग करता है, जिससे व्यूअर का अटेंशन मेन सब्जेक्ट पे रहे और फ्रेम का ओवरऑल मूड भी बना रहे. और सेकेंडरी लाइटिंग में आप एक या एक से ज़्यादा लाइट्स को यूज़ कर सकते हो. I use small lights, lamps and this special focus LED light from Small Rig. ये काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट है बैकग्राउंड को शेप देने के लिए. इसमें मल्टीपल कलर्स, पैटर्न, डिस्क और इंटेंसिटी कंट्रोल मिलता है, जो इसे एक परफेक्ट क्रिएटिव टूल बनाता है. Now let's talk about the noise, because this is something that can instantly break the cinematic feel of the footage if it's not controlled properly. So पहले समझते हैं कि नॉइज़ आता कहाँ से है. नॉइज़ बेसिकली तब अपीयर होता है जब कैमरा को प्रॉपर लाइट नहीं मिलती, और जब लाइट की कमी होती है तो कैमरा के पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं होता टू जनरेट इमेज. बेसिकली कैमरा का सेंसर जो होता है वो बनाया गया है कैमरा लाइट को कैप्चर करने के लिए. जितना ज़्यादा लाइट होगा उतना ही क्लीन इमेज आएगा. लेकिन जब लाइट कम होती है तो कैमरा के पास प्रॉपर सिग्नल नहीं होता, तो वो उस वीक सिग्नल को आर्टिफिशियली बूस्ट करने की कोशिश करता है. यानी कि जितना भी थोड़ा कम उसे लाइट मिला है वो उसे एम्पलीफाई करता है. अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, जब आप सिग्नल को बूस्ट करते हो तो सिर्फ इमेज बूस्ट नहीं होता, उसके साथ अनवांटेड डिस्टर्बेंस भी बूस्ट होता है, जो कि नॉइज़ के फॉर्म में दिखता है. दुनिया का हर कैमरा नॉइज़ रिकॉर्ड करता है, और ऐसा कोई कैमरा नहीं है जो कि कम्प्लीटली नॉइज़ फ्री हो. बस डिफरेंस ये है कि कैमरा उस नॉइज़ को अलग तरीके से हैंडल करता है. किसी में कम विजिबल होता है, किसी में ज़्यादा, और इसीलिए हमें लगता है कि कुछ कैमरा काफ़ी क्लीन आउटपुट देते हैं, बट एक्चुअली नॉइज़ हर जगह होती है. नॉइज़ सबसे ज़्यादा लो लाइट सिचुएशन में विजिबल होता है, और या फिर ISO को आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो, और या फिर किसी अंडर एक्सपोज्ड क्लिप को आप एडिटिंग के टाइम पे ब्राइटन करने की कोशिश करते हो. सबसे सिंपल एंड इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है प्रॉपर लाइटिंग. जितनी अच्छी लाइटिंग आप सब्जेक्ट पे दोगे उतना ही क्लीन इमेज आएगा. और इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शूटिंग के टाइम पर ही अगर आप सही एक्सपोजर ले लेते हो तो पोस्ट प्रोडक्शन में आपको इमेज को पुश करना नहीं पड़ेगा. और दूसरी चीज़ है ISO कंट्रोल करना. ISO को अननेसेसरी हाई रखना अवॉइड करो. कोशिश करो कि अपनी लाइटिंग को इम्प्रूव कर सको इंस्टेड ऑफ ISO को हाई रखने के. मोबाइल फ़ोन सेंसर हो, APS-C सेंसर हो या फुल फ्रेम हो, इन सब के अपने एक ऑप्टिमल ISO रेंज होता है, जिनमें वो सबसे बेस्ट और क्लीन फुटेज प्रोवाइड कराता है. तो आप ट्राई करो कि हमेशा मैनुअल मोड में शूट करने की कोशिश करो, जिससे आप ISO को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सको और अननेसेसरी नॉइज़ को अवॉइड कर पाओ. तो ओवरऑल नॉइज़ को कम्प्लीटली रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसे कंट्रोल करना पॉसिबल है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्शन. मैंने इन सब चीज़ों को इस तरीके से कवर किया है कि आप इसके इंपॉर्टेंस को समझ सको और अपने टूल्स एंड डिवाइस के पोटेंशियल के हिसाब से आप डिसाइड कर सको कि आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है. बाय द वे, अगर आप इन फंडामेंटल्स को ध्यान में रखोगे तो आप कोई भी कैमरा यूज़ करो, इट रियली वॉन्ट मैटर. आप उसके फुल पोटेंशियल को हमेशा हिट कर पाओगे. Let me introduce you something special. A tripod. It might look like a boring piece of gear, but not this one. This
is a small leg Tribex SE in collaboration with Potato Jet. The metal legs are used hydraulic systems so they can open and close very fast in just few seconds. It feels strong, solid, and can hold up to 6 kgs easily. This tripod made for real shooting situations. Stable, reliable, and easy to use. The quick release system is big advantage. It saves time and make your workflow faster. The fluid head is smooth and easy to control. You can attach and remove your camera quickly, and it can support DJI RS2 and RS3 plates. Whether you are shooting slow cinematic shot or faster movements, it gives you good control. It's not the cheapest option, but it's a professional tripod, and compared to other cinema tripod, it offers great value for the quality you get. Now let's talk about the editing, the game changer. Usually लोग मास्टर नहीं होते कलर ग्रेडिंग में, और मैं भी नहीं हूँ, बट देयर इज़ अ वन टूल जो आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है डिफरेंट शेड्स को एक्सप्लोर करने के लिए एंड बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करने के लिए, एंड दैट इज़ Dehancer. मैं इसके बारे में बहुत पहले से जानता था, बट आई नेवर थॉट कि ये मुझे रिव्यू के लिए कॉन्टैक्ट करेंगे, एंड नाउ दे वांट अ ऑनेस्ट रिव्यू. सो आफ्टर यूजिंग इट फॉर मोर देन अ मंथ, आई एम एक्चुअली एडिक्टेड टू दिस टूल, क्योंकि कलर ग्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मैं लैग करता हूँ, और इसे यूज़ करने के बाद मेरी सिर्फ कलर ग्रेडिंग इम्प्रूव नहीं हुई है, मेरा काफ़ी टाइम सेव भी हुआ है. यूजुअली ऐसे सिमिलर टूल्स में सिर्फ लट्स मिलते हैं जो कि इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता, बट हियर यू हैव लिटरली एवरीथिंग. सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है लॉक फुटेजेस को रेक्स 7 और 9 में बदलने के लिए, और डिफरेंट कैमरा मॉडल्स के साथ उसके बेस ISO तक का ऑप्शन है, एंड लिटरली सारे कैमरा और उनके मॉडल्स के ऑप्शन है इसमें, इवन आईफोन के लॉग फॉर्मेट तक. उसके बाद यू हैव 60+ फिल्म प्रोफाइल, जो कि रियल फिल्म स्टॉक से इंस्पायर्ड है, जो हॉलीवुड, बॉलीवुड और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है. उसके बाद आता है वो चीज़ें जिसके लिए हम अलग से ट्यूटोरियल्स देखते हैं, जैसे ग्रेन, हैलेशन, ब्लूम. यहाँ पे वो सब बिल्ड इन है, और आप इसके इंटेंसिटी, साइज़, ओपेसिटी, इन सब को कंट्रोल कर सकते हो, वो भी ईज़िली. एंड ऑनेस्टली ये चीज़ें काफ़ी टाइम बचाती हैं, क्योंकि पहले मैं इन सब चीज़ों को मैनुअली ऐड करता था. ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म में लिमिटेड नहीं है, ऑल एडोबी सॉफ्टवेयर, DaVinci Resolve, फाइनल कट एक्स प्रो, सब पे अवेलेबल है. इतने ज़्यादा ऑप्शंस और इतने सारे कॉम्बिनेशंस हैं कि इतने दिन यूज़ करने के बाद भी इसे प्रॉपर्ली एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ. अभी मुझे फिल्म डेवलपर, फिल्म कंप्रेशन और प्रिंट टोनिंग जैसे फीचर्स के बारे में सीखना है, जबकि इनका बहुत बड़ा रोल होता है कलर ग्रेडिंग में. इतने सारे ऑप्शंस है कि आप धीरे धीरे ही सीख पाओगे, और जो चीज़ें आप अलग अलग जगह से डाउनलोड करते हो, जैसे ओवरलेज, ओवर स्कैन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्ड इन मिलती हैं. आपको बस सेलेक्ट करना है और अप्लाई करना है, और इसी वजह से ये एक पावरफुल टूल भी है, जो कि ऑब्वियसली प्रोसेसिंग पावर मांगता है, जो आपके सिस्टम पे थोड़ा लोड दे सकता है. एंड ऑल्सो ये मोबाइल पर भी अवेलेबल है, पर सिर्फ iOS पर. मैंने इसे पर्सनली यूज़ नहीं किया है क्योंकि मेरे पास आईफोन नहीं है, बट जितना मैंने देखा है लगभग सारे फीचर्स उसमें हैं, बट ये कभी कभी लैग करता है क्योंकि इट्स डूइंग हैवी प्रोसेसिंग इन रियल टाइम. फॉर मी दिस इज़ द मेन टूल, और ये वीडियो भी उसी से कलर ग्रेड हुआ है, और आगे भी इसी से करना चाहूँगा. एंड ऑनेस्टली इट्स माई फेवरेट टूल. It's powerful and fast way to bring your footage closer to a film look. But it's not free, and if you decide to get it, you can use my code to get 10% off. And that's all about the film look. I tried my best to explain the main fundamentals की कैसे चीज़ें काम करती हैं, कैसे चीज़ें मैटर करती है when you are try to achieve a cinematic feel. I hope थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी, and I always try my best to share whatever I know, whatever I learn from my experience. Because I never been a film school, I am not certified in any of this, but still some people say that I'm a perfect creator. No, I'm not perfect at all. Trying my best every day. That's the whole point. You try your best. So just keep creating whatever you want. Enjoy the pressure, enjoy the process, and just keep going, and don't forget to be a good human being.